we are going to start our first chapter named Planning in Sports. As you know that planning is necessary in every field. Now we are going to start reading because you might not have that books. Planning plays a vital role in every field of life. Means in our life, planning is very necessary and able things. As far as possible, education and sports is concerned, it also plays a significant role in the harmonious development of an individual. जैसे कि आपने देखा कि हार्मोनियस डेवलपमेंट ये जो प्रोसेस है इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यू all the life. In fact, the harmonious development of an individual is really very difficult task without the appropriate programs of physical education and sports. जैसे कि लाइफ के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी टास्क हो वो हमारे appropriate प्लानिंग के बिना पॉसिबल नहीं है. As a matter of fact, unachievable things can be achieved by involving in high quality programs of physical education and sports, but it needs proper and effective plannings in the field of physical education and sports. We cannot get the maximum benefit from the programs of physical education and sports until we do not make effective planning of sports program. As you know that without any proper planning we cannot get our proper result. In most of the schools in India, there is a lack of adequate planning in the field of sports. Here the word adequate. Now, do you know the meaning of adequate? Adequate का meaning है हमें जितना जरूरी है उतना. यानी कि हमें प्लानिंग के अंदर जो हमारा गोल है उसके ऊपर पहुंचने के लिए जितना जरूरी है उतना प्लानिंग करना ही पड़ेगा, तभी हम हमारे गोल तक पहुंच सकते हैं. Generally, for participation in various tournaments, teams are selected at the 11th hours. यहाँ पर 11th hours का मतलब ये नहीं कि हम 11 बजे की बात कर रहे हैं. 11th hours यानी कि ये होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता और टीम पूरी खेलने के लिए चली जाती है. तो अगर ये प्रॉपर प्लानिंग के बिना, प्रैक्टिस के बिना खेलने जाएंगे तो क्या हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल सकेगा? Obviously no. Players are not given proper training. They hardly get few days to do practice. They are not properly motivated towards sports. और ऐसे क्या होगा कि प्रॉपर प्रैक्टिस के बिना, प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना अगर हम खेलने जाएंगे तो बताओ क्या ये गेम के लिए ठीक रहेगा? कोई भी प्लेयर होगा वो ट्रेनिंग के बिना अगर खेलने जाएगा तो उसका रिजल्ट जो है वो अचीव नहीं होगा. They are not properly motivated towards sports. How can we expect their harmonious development? तो क्या इसका harmonious development, सतत विकास क्या होता रहेगा? नहीं होगा. In fact, a well planning program of physical education and sports is need of the hours of our school. तो proper planning की जरूरियात हमारे स्कूल की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें या आपके लाइफ की बात करें, that is very needed. The first point is meaning and objective of planning. मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लास्ट 4-5 एग्जाम के अंदर
बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये टाइप का क्वेश्चन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता ही है। तो ये जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स है वो सब आपको प्रॉपरली रीड करने पड़ेंगे, ग्रास्प करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। देखते हैं उसका। प्लानिंग इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव डिजायर्ड गोल। प्लानिंग comprise the process of setting goal, developing strategies and outlinking tasks and schedules of accomplish the goal. In simple word, please keep in mind, in simple word, planning is deciding in advance what is to be performed, when, where, how and by whom it is to be performed. Means that whatever activity you are going to perform, that activity where to be conducted and who will organize that, who will look after all the things, that is should be planned earlier before this activity. In fact, planning is the process which helps us in reaching at our destination efficiently and smoothly. जैसे कि पहले हमने देखा, इसी तरह से प्लानिंग के अंदर प्रॉपर हमने थिंकिंग किया होगा, पहले से हमने सोच के रखा होगा, तभी हम हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा गोल है, वहां तक जा सकते हैं। प्लानिंग के बिना हम हमारे गोल तक पहुंच नहीं सकते। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट अ प्लान इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ स्पेसिफाइड गोल। प्री डिटरमाइंड मीन्स हमने जो डिटरमाइन किया है, जो तय किया है, उसके पहले का टास्क। हमारा डिटर्मिनेशन है हमारा गोल तक हमें पहुंचना है, तो गोल तक पहुंचने का रास्ता प्लानिंग कैसे करें वो हमें यहाँ पर चैप्टर के अंदर समझा रहे हैं कि स्पोर्ट्स के फील्ड के अंदर हमारा जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, बेस्ट परफॉर्मेंस तक हम कैसे पहुंच पाएंगे, उसका जो हम थिंकिंग कर रहे हैं एडवांस में, वो हमारा प्लानिंग है। The following definitions may be helpful to understand the clear-cut meaning of planning. बोर्ड के एग्जाम के अंदर में भी क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज प्लानिंग। 3 मार्क के अंदर 1 मार्क जो कैरी कर रहा है वो क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज प्लानिंग। तो उसके अंदर बुक्स के अंदर बहुत सारे डेफिनेशन दी है, उसमें से कोई एक डेफिनेशन पूरी वर्ड टू वर्ड आपको लिखना है। यहाँ पर 2 डेफिनेशन में रीड करूंगा। जैसे कि फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू मिचेल का ये मानना है, he says that planning is usually interpreted as a process to develop a strategy to achieve desired objectives, to solve a problem and to facilitate action. Means that Mitchell said that planning is usually interpreted means it is joined activity. It is not a solo activity, it is joined activity. It means that 2 or 3 activity combined make your process successive to develop a strategy। 2 या 3 एक्टिविटी को हम कंबाइन करें और उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाएं, तभी तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा हेतु है, तो उस तक हम पहुंच सकते हैं। एंड उसके अंदर जो हमारे प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम को समझ के हम पूरा हमारे टास्क को क्लियर कर सकते हैं। सो दैट इज द वन definition given by Mitchell. Second, according to the Allen, a plan is a trap laid to capture the future, and I think this is the best definition and simplest definition given by Allen, and I think it is very easy for you to remember this one sentence only. A plan is trap laid to capture the future. फ्यूचर के अंदर हमें जो काम करना है, वो एक्टिविटी को हम पहले से समझे, वो टास्क को हम समझे, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। सिंपल है ये। इन कंक्लूजन, it can be said that planning is an intellectual process of thinking in advance about setting of goals and developing strategy which are required to attain the goals efficiently. However, it is the field of physical education and sports. There are various types of planning. Planning are related to the organization of various types of sports tournaments such as
knockout tournament, league tournament, combination tournament and challenging tournaments. These are also related to sports training such as sports term, short term and long term planning. Planning is necessary to make the best use of what is available so as to achieve the immediate and long term aims. मीन्स हमने जो आगे देखा उसके अंदर दो डेफिनेशन थी, उसमें से कोई एक, और मुझे लगता है कि एलन ने जो एग्जांपल आपको दिया है, जो डेफिनेशन आपको दी है, वो आपके लिए इजी हो सकती है रिमेंबर करने के लिए, तो उसको ही हम एग्जाम के लिए लर्न करेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ वो डेफिनेशन कि अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर, वो आपके लिए इजी रहेगा। बाकी यहाँ पर बात हो गई मीनिंग की, अब बात आई है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर बुक्स के अंदर 7 ऑब्जेक्टिव आपको दिए हैं। फाइनल एग्जाम के अंदर 3 मार्क का क्वेश्चन हो तो और उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा हो कि राइट डाउन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, तो इट मींस दैट 1 मार्क कैरी फॉर द मीनिंग एंड 2 मार्क कैरी फॉर द ऑब्जेक्टिव। और ऐसे ही अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर 1 मार्क जो होगा वो होगा वो मीनिंग का, और बाकी का 4 मार्क्स जो होगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 मार्क की मीनिंग की डेफिनेशन आप दोगे, मीनिंग्स आप बताओगे तो उसका 1 मार्क कैरी हो जाता है। बाकी के 4 मार्क्स के अंदर ऑब्जेक्टिव 4 मार्क के हैं तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। अगर ऑब्जेक्टिव 2 मार्क के रहते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव 2 मार्क के रहते हैं तो आपको 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली लिखने थे। तो ये बात होगी एग्जाम की। अब यहाँ पर समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ एमिडेंसी। तो पहले हमने देखा कि एक वर्ड आया था 11th आवर्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 11th आवर्स का मतलब होता है कि 11 बजे की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि जल्दबाजी में अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया हुआ है या तो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की हुई है और जल्दबाजी में अगर आप कोई भी टास्क को अचीव करने जाएंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। जैसे हम बात करें क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट, उसकी टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट के अंदर कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अकाउंटेंसी हो, बीएससी हो या पीई हो, कोई भी सब्जेक्ट है जिसकी थ्योरी एग्जाम दे रहे हो और थ्योरी एग्जाम के अंदर आपने प्रॉपर रीड नहीं किया और लास्ट में रीड करके आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या बताओ आपका रिजल्ट क्या सही आएगा उसके अंदर? ऑब्वियसली नो। उसी तरह से अननेसेसरी यहाँ पर प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी तो ये हमारा प्रेशर रिड्यूस हो सकता है। रीड करते हैं, व्हेन टूर्नामेंट और कंपटीशन आर कंडक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट इज लाइक टू हैपन, प्रेशर्स विल रिमेन देयर टू अचीव सर्टेन रिजल्ट इमीडिएटली। अगर हमें पता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होने वाला, तो ऑब्वियसली हमारे माइंड के अंदर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इन सच हरी और इनएविडेंस द जॉब कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली एंड स्मूथली। और उसी तरह से अगर आप प्रेशर में कोई भी काम करोगे तो उसके अंदर जितना आप इफेक्टिवली रिजल्ट देना चाहते हो इतना रिजल्ट आपको मिल नहीं सकता। सो टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ एविडेंसी इज द प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग। तो ये जो प्रेशर बन रहा है उसको हम कैसे रिड्यूस करें, इसको पहले से हमें प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग से ही हमारा जो प्रेशर बन रहा है अननेसेसरीली उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इफ द ऑर्गेनाइजर्स प्रिपेयर अ प्रॉपर गुड प्लान बिफोरहैंड देयर विल नॉट बी एनी अननेसेसरी प्रेशर। परफेक्ट प्लानिंग विल नेचुरली अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर। तो यहाँ पर जैसे बताया कि if the organizer is making proper planning, so there will be no chance to create a pressure on an individual. Second one, to keep good control over all the activity. Here the word is control. If you have a good control on the activity, the result will be the good. To keep a good control of over all the activities is another objective of planning. Planning and control are connected with each other. यहाँ पर planning and control are interconnected. जहाँ पर planning है वहाँ पर control रहेगा ही रहेगा और वहाँ पर
आपको कंट्रोल करने से ही आपका प्लानिंग अच्छा बन सकता है। इफ टूर्नामेंट और कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज्ड विद अ परफेक्ट प्लान, गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट टूर्नामेंट विल बी इजियर। तो यहाँ पर प्रॉपर परफेक्ट प्लान रहा होगा, कंट्रोल रहा होगा उसके ऊपर, तो आपका जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बिल्कुल अचीव आप कर सकते हो इजीली। प्लानिंग हेल्प्स इन कीपिंग अ गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। तो प्लानिंग से आपको आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल जो आपने डिजायर किया हुआ है उस तक आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर दो पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। एक तो फर्स्ट है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी, सेकंड वन टू कीप गुड कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी, थर्ड टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। कोई भी गेम हो या कोई भी टास्क हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसके अंदर एक से ज्यादा मेंबर होने के पॉसिबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर इफ देयर इज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन ईच अदर, देयर विल बी नो प्रॉपर रिजल्ट। सो you should be a very proper understanding to each other for making your goal very achievable. The objective of planning is related to facilitate proper coordination among the various members of committees formed for organizing the competition smoothly. जैसा कि आप जानते हो कि हमारे स्कूल के अंदर भी काफी बार हम खेल महाकुंभ के अलग अलग कंपटीशन करते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि कोई एक पर्सन वो सभी एक्टिविटी को हैंडल नहीं कर सकता। शॉर्ट पुट की बात हो, जंप इवेंट की बात हो, रनिंग की इवेंट की बात हो, तो हर एक जगह पर ऑफिसर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वो एक कमेटी बनती है जिसके अंदर जिसका जो टास्क है वो टास्क कैसे कंप्लीट करना, उसकी कमेटी बनके पूरे एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ पूरा हम टास्क क्लियर करते हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मतलब कहने की बात है कमेटी के अंदर बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। Without proper coordination among the officers of the tournament, it will not be easy to conduct or organize the sports tournaments. A proper planning help in making the proper coordination. So, proper planning होगा तभी तो आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनेगा। जैसे कि कोई भी इवेंट हो उसके पहले कमेटी फॉर्म होती है, कमेटी के अंदर ये डिसाइड होता है कि कौन सी एक्टिविटी करेगा, किसको, जैसे कि खेल महाकुंभ के अंदर आपने देखा होगा या स्कूल गेम के अंदर देखा होगा कि हम बहुत सारे पीटीआईज और उसके साथ हेल्प करने वाले दूसरे टीचर्स या तो हमारे जो प्यून भाई लोग हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं। तो उसके अंदर हम पहले डिसाइड करते हैं कमेटी बना के कि किसको क्या जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे पूरा करेंगे। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ मेंबर्स नए भी होते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनको पहले समझाना पड़ता है ताकि कम से कम गलतियां हो सके, आपको गलतियां के कोई वहां पर चांसेस न हो। तो उसके लिए प्रॉपर पहले कमेटी बनती है और उसके अंदर डिस्कस करने के बाद हम सभी को काम देते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये है कि टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने से बन सकता है कि हमारी जो कंपटीशन है, ये जो टास्क है उसके अंदर मिनिमाइज जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कर सकते हैं और हमारा टास्क इजीली हम पूरा कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक तो वही करता है जिसने पूरा या तो प्रॉपर प्लान नहीं किया होता। अगर प्रॉपर आप प्लान करते हो, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, तो यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या तो नहीं रहते। To reduce the chance of mistake is also a significant objective of planning. A proper plan reduces the chance of mistake and oversight. Although mistakes and oversight in any field cannot be avoided completely, but it is sure that they can be reduced up to some extent through proper planning. जो मिस्टेक्स है उसको हम पूरा के पूरा तो रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग से हम उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं, उसको हो सके इतना कम तो कर सकते हैं। कम यानी कि हर बार उसको कम करते करते जाने से हमारा जो प्लानिंग है वो अच्छा कहलाता है और हमारा जो टास्क है वो इजीली क्लियर हो जाता है। इफ देयर आर नंबर ऑफ मिस्टेक इन आवर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, it will not leave a good pressure on the participant। और अगर प्रॉपर प्लानिंग होगा
तो जो पार्ट ले रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, उसके ऊपर उसकी इफेक्ट पॉजिटिवली हम दे सकते हैं जब हमारे प्रॉब्लम्स कम होते हैं। तो अगर प्रॉपर प्लान नहीं होगा, सपोज एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कोई एक ऑफिसर ऐसा है जो नया है और उसको शॉर्टपुट के इवेंट पर आपने उसको रख दिया है। वैसे कि हमने पहले कमेटी बना के उसको समझा भी दिया है, फिर भी अगर वो थोड़ा बहुत कुछ नहीं समझा और उसने शॉर्टपुट की इवेंट कंडक्ट की, उसके अंदर जो बॉयज और गर्ल्स यानी कि मेल और फीमेल के लिए आप जैसे जानते हो कि शॉर्टपुट जो होता है उसका वेट डिफरेंस होता है। तो मेल की इवेंट चल रही है और उसने फीमेल का जो शॉर्टपुट होता है वो यूज करके थ्रो कराया और उसका रिजल्ट निकाला, तो उसकी इफेक्ट किसके पर आएगी? अल्टीमेटली पार्टिसिपेंट्स पर आएगी। पार्टिसिपेंट जो है अपना जो रिजल्ट है उसको पता है कि मैं जो शॉर्टपुट फेंक रहा हूँ वो 7.50 या 7.84 से आगे नहीं जा सकता, और उसने फीमेल का शॉर्टपुट उठा के फेंका और उसका रिजल्ट बना 10.50, तो उसकी इफेक्ट उसके पर आती है। हाँ, वहां पर उसका रिजल्ट जो है वो बड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली उसके ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। और उसके बिल्कुल विरुद्ध देखें तो जो फीमेल की इवेंट चल रही है, गर्ल्स की इवेंट चल रही है, उसके अंदर आप देखोगे कि बॉयज का आपने शॉर्टपुट उसको दे दिया और उसने वो थ्रो किया, तो वहां पर उसका फीमेल का जो पावर है उसके अकॉर्डिंग उसका जो मेजरमेंट बन रहा है उससे वो कम आ सकता है, तो वहां पर उसको इनजस्टिस हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा जो आप प्लानिंग कर रहे हो उसके अंदर हो सके उतनी जो मिस्टेक है वो कम होनी चाहिए। फिफ्थ, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, काम करने की जो आपकी ताकत है वो यहाँ पर इंक्रीज होनी चाहिए। कब इंक्रीज होगी? जब आपने प्रॉपर प्लान किया है, तब काम करने की जो ताकत है वो आपकी बढ़ सकती है। जैसे कि टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफिसर्स इन कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट या कंपटीशन, इट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, the sports officers become more efficient. They perform their duties efficiently and effectively. It is the important purpose of planning to increase the capability and efficiency of officials. Officials को पहले से अवेयर होना चाहिए कि यहाँ पर कितने नए नए रूल्स अप्लाई हुए हैं, या तो कौन से ऐसे रूल्स है जो हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूल्स के अंदर थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि ट्रैक के ऊपर इवेंट चल रही है और अचानक से बारिश हो जाए, तो किसी भी तरह से इवेंट तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, टास्क तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर से लोग आए होंगे, उसको आज इवेंट करने का हमने प्लानिंग किया हुआ है और हम उसको बोले कि आज नहीं कल हो जाएगा, तो उनका आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ जाएगा। और तो और जो उनके साथ एम्प्लॉय आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, कोचेस आ रहे हैं, उनके जो उन्होंने लीव्स ली है उसके ऊपर भी उसकी इफेक्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन पर हमें किस तरह से टास्क पूरा करना है, तो ऐसे ऑप्शनल आंसर भी पहले से रेडी करके हम हो सके इतने जो ऑफिसर्स है उसको हम एफिशिएंट बना सकते हैं कि टास्क है उसके अकॉर्डिंग हम चल के ये टास्क को हम पूरा करेंगे। Now, sixth point, to increase the creativity. Creativity means कुछ नया करना। To increase the creativity is another significant objective of planning. As a matter of fact, a proper planning increases the creativity among officials, coaches, or physical education teacher. In fact, planning helps innovatively and creative thinking among sports officers because many new ideas come to the mind of officers when they make a plan. जब हम प्लान कर रहे हैं तब हमें बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं कि अगर ये टास्क चल रहा है, अगर ये एक्टिविटी चल रही है, उसके अंदर ये बना, ये पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर कुछ बारिश हुई, तो उसके ऑप्शन में क्या ढूंढे, या तो कोई वॉलीबॉल की इवेंट चल रही है और कोई स्मैशर ने हार्डली बॉल को स्मैश किया और वो नेट को टच हुआ और नेट जो है बीच में से फट गई, या तो ऊपर से जो बंधी हुई थी उसमें से वो टूट गई, तो क्या किया जाए? तो ऐसे टास्क के अंदर क्रिएटिविटी, किस तरह से हम कुछ नया करें, किस तरह से ये सारे प्रॉब्लम्स को हम रिमूव कर सकते हैं, तो ये सारे जो हम एक्टिविटीज क्रिएटिव को बना सकते हैं जब हम प्रॉपर
प्लानिंग करते हैं तब ये सारे चांसेस जो है, जो पॉसिबिलिटी है, उसको हम समझ सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट, टू एनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अल्टीमेटली हमारा गोल रहता है कि जो परफॉर्म करने वाला प्लेयर है उसको कोई इनजस्टिस न हो, तो उसका परफॉर्मेंस कब बढ़ेगा, जब हमारा प्लानिंग पूरा होगा तब। जैसा कि हम जो कोचिज होते हैं वो वहां पर परफॉर्म नहीं कर रहे, वो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो खेलने वाले प्लेयर है उसका जो परफॉर्मेंस है वो कब बढ़ेगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमसे कोई गलती हो गई या कोचिज से कोई गलती हो गई तो उसकी पूरी इफेक्ट उसके ऊपर होती है। तो यहाँ पर हो सके तो अच्छा प्लानिंग करने से उनका जो स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस वो बढ़ जाता है। It is also one of the significant objectives to enhance the sports performance of athletes or player. Without proper planning, it is impossible to improve the performance of sports person. In fact, training of sports is useless if it is not well planned. Here they said that in fact training of sports is useless if you are not making proper plan. So it is a worthless. उसका कोई वजूद रहता नहीं है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग होगा तभी तो आपका जो टास्क है वो इजीली आप पूरा कर सकते हो, या तो आपका जो गोल है उसके ऊपर आप पहुंच सकते हो। अल्टीमेटली स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बच्चों का कब बढ़ेगा, जब आपने प्रॉपर प्लानिंग एक्टिविटी का किया हुआ है तब। तो आज हमने प्लानिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर के अंदर मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, दो यहाँ टास्क कंप्लीट किए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो कोई भी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो कमिटी है उसके क्या क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। थैंक यू।